morning, students. Today we will start the first chapter of our history book, and the name is From the Beginning of Time. From the beginning of time. जब से time start हुआ है. In this chapter we will study about the early man, the evolution of the early man, or we can say the existence of the human beings. How we have existed on this earth. ठीक है? How we have changed from the early man and how we have gained the characters of the present day human beings. So ये changes कैसे आए थे? ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. The first chapter from the beginning of a time. So before when I start this chapter, let me give you a brief introduction about our history book of class 11. Okay, class 11 history book deals with the history of the world, things in the world history. Okay, इंडिया की हिस्ट्री इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है. हम सारी पढ़ेंगे इसके बारे में, अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन, अबाउट द मेसोपोटामिया civilization in Iraq, about the Roman Empire in Europe and Africa and Asia, about the Islamic Empire in the Arab Peninsula, about the Mongolian Empire, Genghis Khan, about China, Australia, USA and the Latin American countries, Mexico, Brazil, Peru and so on. Okay, so it will deal all about the world history, not the Indian history. Indian history we will study in the class 12 in our history textbook. Okay, so let me start this chapter from the beginning of time. ठीक है, कैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ. फर्स्ट एक वर्ड हमने सुना है बहुत बार पहले भी इन आवर अर्लियर क्लासेस, previous classes, smaller classes, fossils, अवशेष. Fossils remains of the plants, animals and humans which have turned into stones today, and what we find in the earth at present when we dig out the earth, ठीक है, when we excavate the things. archaeologists जो होते हैं, the persons who study about the archaeological things, ठीक है, they always study this type of fossils. ठीक है, fossils को स्टडी करते हैं. fossils क्या हो गए? remains of plants, animals and humans. remains बचे हुए अवशेष, ठीक है, किसके? plants के भी, एनिमल्स के भी एंड ह्यूमंस के भी. ठीक है, आज क्या मिलता है? उनका स्केलेटन मिलता है. ठीक है, क्या होता है? पूरा स्केलेटन मिल जाए, क्या होता है? थोड़ा आधा मिल जाए. ठीक है, व्हाटएवर, उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, मालूम करते हैं कि ये किसका एनिमल का है, ह्यूमन का है, किसका है, कितना पुराना है, ह्यूमंस में मेल का है, फीमेल का है. ठीक है, हर चीज वो उसके बारे में मालूम करते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है, एंड how much knowledge we are having today about human evolution, what the historians, what the archaeologists they have given us. They have given one idea that human existence on this earth was about 1,60,000 years ago. ठीक है, 1,60,000 साल पहले इसका ह्यूमन से क्या हुआ? एग्जिस्टेंस हुआ था. ठीक है, एंड द अर्ली मैन, जो अर्ली मैन था, ठीक है, he used to obtain food by two methods, either by hunting or by gathering. ठीक है, hunting करना और gathering करना, इन दो तरीकों से he used to obtain his food. gathering करना, इकट्ठा करना. gathering क्या? mostly the plant produce. ठीक है, तो plant produce होते थे, उसका करते थे, वो इकट्ठा करते थे for their use in the future, in the coming days. ठीक है, तो hunting and gathering. Okay, that early man, he also used to make the tools for his various uses, and the tools they were made of the stone. So stone tools were made by the early man. Okay, that early man also used to communicate with each other. Okay, we will study a topic about the communication. What was the language which was used by the early man? ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन छोटे क्लासेस के अंदर. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ दैट अर्ली टाइम दे यूज्ड टू यूज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, टू से सम वर्ड्स व्हाट दे आर इन देयर माइंड. ओके, सो we will study about the communication skills in
in the next coming videos. Okay, so stone tools वाले थे, communication उनके बीच में होता था, food गैदर करते थे, गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे फूड के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी. आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा लगे रहते हैं, always they are always in the work of finding the fossils कि कब कहाँ पे कौन सा फॉसिल मिल जाए. ठीक है, बहुत सारे स्कल्स मिले. ठीक है, जब ह्यूमंस को नॉलेज नहीं थी, ठीक है, कुछ मिला, नॉलेज नहीं है, फेंक दिया. और जब से नॉलेज हुई, ठीक है, तब से उन्होंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया ताकि मालूम कर सकें कि आखिरकार इस धरती पे हम लोग कैसे आए, स्टार्टिंग कैसे थे, आज जैसे हम हैं कि वैसे ही थे या हम कुछ अलग तरीके से थे. ठीक है, तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ था इन जर्मनी. ठीक है, एक वैली थी नेम्ड एज द लीएंडर वैली. इट इज इन जर्मनी. ओके, जर्मनी कंट्री है ना, यूरोप. ओके, अगस्त 1856, अगस्त 1856. ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे थे, लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे. सम पीपल वर वर्किंग इन द माइनिंग ऑफ द लाइमस्टोन, खुदाई ऑफ द लाइमस्टोन. ठीक है, सो उसी खुदाई में उनको एक स्कल मिला. ठीक है, उस स्कल को देखा तो बड़ा अजीब सा लगा. ठीक है, ऐसा नहीं था जैसा आज हम लोग हैं. ठीक है, तो मिला उस स्कल को. उन्होंने एक वहाँ के एक लोकल स्कूल मास्टर था. ठीक है, एंड ऑल्सो वाज ए हिस्टोरियन. नाम था उसका कार्ल फुहर्ट. क्या नाम था? कार्ल फुहर्ट. उसको उन्होंने वो दिया. कार्ल फुहर्ट ने उसको स्टडी किया. आगे पास में यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में उसको पहुंचाया. ठीक है, और पहुंचाने के बाद उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने क्या बोला कि जो वो स्कल था वो एक ऐसे ह्यूमन का था दैट वाज एक्सटिंक्ट, जो पहले कभी क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो इस धरती पे अभी नहीं है. ठीक है, एक्सटिंक्ट वर्ड आते हैं हमारे दो वर्ड आते हैं, एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट ऐसी स्पीसीज जो पहले थी अब नहीं है, टोटल तरीके से खत्म हो चुकी हैं. इंडेंजर्ड ऐसी स्पीसीज जिनका फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का खतरा है. ठीक है, जैसे टाइगर की संख्या बहुत कम है, फ्यूचर में कभी भी ये खत्म हो सकते हैं. ठीक है, तो वो स्कल एक ऐसे ह्यूमन का था जो पहले था और आज क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है. ठीक है, फिर इसी ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर एक बुक आई. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका चार्ल्स डार्विन. नाम था चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने नवंबर 1859 में एक बुक लिखी थी. ठीक है, बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिटन बाय चार्ल्स डार्विन in 1859 November. Okay, in that book he has written about the human evolution. कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ उन्होंने लिखा है. उन्होंने क्या बताया कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम अगो, कि बहुत सालों पहले, लॉन्ग टाइम अगो. फिक्स ईयर नहीं है, एज्यूम करते हैं. ठीक है, क्योंकि उस समय की चीज़ें आज हमारे पास एकदम वैसी नहीं है. ठीक है, डिके हो चुकी हैं, कोई फुल, कोई हाफ, कोई पार्शियल, कैसे भी मान लीजिए. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन किससे हुआ है, एनिमल से हुआ है. और कब हुआ था? ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले, लाखों करोड़ों सालों पहले. ठीक है, तो इन सालों को लिखने के लिए कोई फिक्स ईयर नहीं है. इन सालों को लिखने के लिए, इन ईयर्स को लिखने के लिए हमारे हिस्टोरियन से एक वर्ड यूज लेते हैं, MYA, मिलियन ईयर्स एगो. कहते हैं मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, और सारे ये जो MYA हैं, मिलियन ईयर्स एगो हैं, दीज आर एज्यूम्ड. क्या है ये? एज्यूम्ड. क्या होता फ्यूचर में जाकर कोई नई थ्योरी आ जाए. ठीक है, डे बाय डे वी आर एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स. ठीक है, टू स्टडी. क्या होता है फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी आ जाए और नई एक थ्योरी आ जाए, जो आज जो हमने एज्यूम कर रखा है कोई ईयर, तो फ्यूचर में आकर क्या हो जाए, चेंज हो जाए. ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर हो गया? तो ये हो गया MYA. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन की बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, फिर humans have evolved from the animals a long time ago. It was said by Mr. Charles Darwin in 1859. ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, स्टार्टिंग जो ह्यूमंस थे उसको अपन क्या बोलते थे. ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में थे मैमल्स. मैमल्स क्या हुए, जो अपने तरह के यंग वंस को जन्म देते हैं. ठीक है, क्या हुए, मैमल्स. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो मैमल्स थे उनका एक पार्ट था कि
सब ग्रुप था वो क्या था, प्राइमेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग जो ह्यूमंस थे उसको अपन कैटेगरी में रखते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमेट्स वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स अपने वर्ल्ड में दो कॉन्टिनेंट्स में थे, एक एशिया में और एक अफ्रीका में। एशिया में भी थे और अफ्रीका में भी। ठीक है, प्राइमेट से थोड़ा और आगे चले तो कुछ चेंजेस आए, एक नया सब ग्रुप बना, एक नया सब ग्रुप बना। उस सब ग्रुप का हमने नाम क्या दिया, होमिनॉइड्स। क्या नाम दिया, होमिनॉइड्स। ठीक है, ये जो चेंज हुआ इस सब ग्रुप में, ये कितने साल पहले हुआ था, लगभग 24 बिलियन ईयर्स एगो। 24 MYA जो मैंने अभी बताया, मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 24 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। तो जो प्राइमेट से जो सब ग्रुप बना उसका नाम क्या था, होमिनॉइड्स। ठीक है, होमिनॉइड्स के अंदर सारे एप्स आते हैं। ठीक है, जितने भी एप्स हैं वो सारे किसमें आते हैं, होमिनॉइड्स के अंदर आते हैं। फिर होमिनॉइड्स चेंज हुए और आगे चल गए तो टाइम पास हुआ। ठीक है, चेंज हुए किसके अंदर, होमिनिड्स के अंदर, इसके अंदर होमिनिड्स। ठीक है, और कितने साल पहले, 5.6 बिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले होमिनॉइड्स चेंज हुए होमिनिड्स के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स। ठीक है, होमिनॉइड्स से क्या बना, होमिनिड्स। मतलब पहले होमिनिड्स थे, उसके बाद में कौन आए, होमिनिड्स आए। ठीक है, होमिनॉइड्स से क्या बना था, होमिनिड्स। दोनों में कुछ चीजें सिमिलरिटीज भी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। ठीक है, डिफरेंसेस क्या थे, कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, जो होमिनॉइड्स कैटेगरी थी, जो होमिनॉइड्स कैटेगरी थी उसकी जो ब्रेन थी वो बहुत ही स्मॉल थी। ठीक है, आई विल गिव सम एग्जांपल्स। कैसे, होमिनॉइड्स की ब्रेन छोटी थी, ब्रेन थोड़ी सी छोटी थी। ठीक है, they were the quadrupeds। quadrupeds मतलब they used to walk with the 4 legs। 4 लेग मतलब 4 पैर नहीं, 2 पैर तो हाथ, जैसे आज बंदर चलता है। ठीक है, बंदर अपने पैर भी यूज करता है और अपने हाथ को भी, मतलब चारों को यूज वो करता है, तो दैट इज नोन एज द क्वाड्रपेड्स। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल फॉरलिम्स, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं अपनी तो इतनी। ठीक है, बंदरों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्यों, क्योंकि दे यूज टू स्टे ऑन द ट्रीज, गुलाटी मारते हैं, उड़ते हैं, तो टहनियों को पकड़ने के लिए दे नीड द फ्लेक्सिबल बॉडीज। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स थे इसके होमिनॉइड्स। क्लियर हो गया। फिर स्मॉल ब्रेन, बंदर का मुंह देखा हुआ छोटा होता है, ब्रेन छोटी होती है, अपने से छोटी है। ठीक है, फिर टाइम पास हुआ, होमिनॉइड से चेंजेस हो गए, क्या बने, होमिनिड्स बने, एक नई कैटेगरी बनी। इसमें कुछ इनके अलावा कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ चेंजेस आए। क्या, एक तो था अपराइट पोस्चर। अपराइट पोस्चर, पोस्चर आई एम स्टैंडिंग, अपराइट पोस्चर। ठीक है, इन्हें अपराइट पोस्चर। बंदर चलता है चारों से तो उसका अपराइट नहीं होगा, हम चलते हैं सिर्फ 2 से। ठीक है, आ रहा है यहाँ देखिए, बाइपेडल लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब चलना, बाइपेडल्स 2, 2 पैरों से हम लोग चलते हैं। ठीक है, अपना क्या हो गया, बाइपेडल लोकोमोशन। होमिनॉइड से कुछ अलग चेंज हो गया। ठीक है, अपराइट मोशन हो गया, सीधा खड़े रहते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन हो गया। ठीक है, एंड दे यूज्ड टू मेक द टूल्स। ठीक है, टूल्स मतलब क्या, वेपन्स, हथियार। हथियार कैसे, टूल्स जो आते थे दे यूज्ड टू मेक विद द स्टोन्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग टूल्स थे दे ऑल वर मेड विद द हेल्प ऑफ द स्टोन्स। स्टोन्स को तोड़कर, नुकीले करके दे यूज्ड टू मेक द स्टोन्स फॉर द वेरियस पर्पसेस, टू किल द एनिमल्स, टू कट द बोन्स, टू कट द स्किन, व्हाटएवर। ओके, सो स्टोन टूल्स को बनाया करते थे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स थे वो इसमें नहीं हैं, ये इनसे पुराने हैं। ठीक है, होमिनॉइड, और जो चेंज हो गया है वो क्या हो गए, होमिनिड्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, अब जो ये होमिनिड्स हैं, ठीक है, इनकी एक फैमिली है। ठीक है, कौन सी फैमिली से है ये, होमिनिड। फैमिली नाम क्या है ये, होमिनिड। ठीक है, जैसे शेर है, शेर कैट फैमिली से बिलोंग करता है, टाइगर है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे इनकी फैमिली है, फैमिली का नाम क्या हो गया,
होमिनिडी, क्या हो गया होमिनिडी। और इसी फैमिली के अंदर देयर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सारे तरह के क्या होते हैं इसमें ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। जितने भी तरह के ह्यूमन बीइंग्स थे, कुछ चेंजेस वाले, अलग अलग फीचर्स वाले, कैरेक्टर्स वाले, दे आर ऑल इन द फैमिली होमिनिडी, ठीक है। तो होमिनिडी का एक और पार्ट कौन सा है, होमिनिड्स, ठीक है, ऑल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब इस होमिनिड्स को हमने फर्दर और डिवाइड किया टू पार्ट्स के अंदर, कितने पार्ट्स के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, उसका जो नाम है वो क्या है, एस्ट्रोलोपिथेकस, क्या नाम है, एस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। एंड जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका नाम होगा होम, क्या नाम है उसका, होम, ठीक है, एस्ट्रोलोपिथेकस एंड होम। उसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में, सब ब्रांचेस में हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो होमिनिड्स हैं उसके अलग अलग कैरेक्टर्स थे, कुछ चीज़ों को लेकर, बॉडी के कुछ चीज़ों को लेकर उसके अलग अलग क्या थे, कैरेक्टर्स थे। जैसे होमिनिड्स की जो ब्रेन साइज थी वो क्या थी, लार्ज थी, अपनी क्या है, लार्ज है, ठीक है। फिर इनमें अपराइट पोस्चर था, जैसे आज अपन है अपराइट पोस्चर। इनका बाइपेडल लोकोमोशन था, मतलब दो पैरों से ये चलते हैं, जैसे आज हम लोग चलते हैं, ठीक है। एंड दे हैव द स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, अपने हैंड में कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं चीज़ों को पकड़ने की, ठीक है, चीज़ों को पकड़ने की, और इन चीज़ों को अलग अलग फॉर्म में डालने की, चेंजेस करने की, बनाने की क्वालिटी सिर्फ अपने हैंड्स के अंदर है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होमिनिड्स के, ठीक है। तो फर्दर हमने होमिनिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो दो का नाम हमें पढ़ा हमने, फर्स्ट वाला इज द सॉरी एस्ट्रोलोपिथेकस एंड सेकंड इज द होमोस, ठीक है। अब एस्ट्रोलोपिथेकस के अंदर दो वर्ड है, ठीक है। एक्चुअली क्या था, ऑल द हिस्टोरियंस who used to study this type of early man fossils and all, ठीक है, they used to use two languages of the world, first is the Greek and the Latin, ठीक है। उनके ग्रीक और लैटिन के जो वर्ड्स थे उनसे उन्होंने इनके नाम वगैरह दे रखे हैं। जैसे इसके अंदर दोनों लैंग्वेज के वर्ड हैं, ठीक है। पहला है ऑस्ट्रल, क्या नाम है, ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन, लैटिन से लिया गया है ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल का मतलब होता है सदर्न, क्या मतलब होता है इसका, सदर्न, ठीक है। एंड नेक्स्ट पिथेकोस, क्या नाम है, पिथेकोस। पिथेकोस इज ए ग्रीक वर्ड, लैंग्वेज क्या है, ग्रीक का, एंड इसका मीनिंग होता है ए, मतलब होता है ए, मींस सदर्न ए। इनके फीचर्स बहुत सारे वैसे ही थे जैसे अर्ली वाले मैन के अंदर थे, कुछ चेंजेस विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, स्पेंडिंग ऑफ टाइम, वो उनमें जरूर आए थे, ठीक है। तो ये इसके होमिनिड्स के क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, ठीक है। सो what the features of these two groups, एस्ट्रोलोपिथेकस एंड द होमोस, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन थी, ठीक है, दोनों में क्या क्वालिटीज थी, वो अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।